Good morning, class. I am Tushar Gupta, your science educator, and today we are here to study our new chapter, that is chapter number 12 of class 8. And the chapter name is Some Natural Phenomena. And what are its learning objectives? Flow of charge, lightning, and thunder. So now let's start our chapter. When we take off a nylon sweater or pull off a nylon socks, there is often a crackling noise. If the room is dark, we may even see sparks. The sound and the sparks are produced by the electricity. The word electricity is derived from the Greek word electron, which means ember. Ember is a hardened secretion resin of a certain tree. We notice that rain is often accompanied by the thunder and the lightning. Why do this happen? Does this dangerous? Is there any way of protecting ourselves? These are some questions that we'll discuss in this chapter. Basically, जब भी हम कभी नायलॉन स्वेटर को उतारते हैं या नायलॉन हमने सॉक्स पहन रखा है उसको उतारते हैं तो ऑफन एक क्रैकलिंग नॉइज होती है। ओके, और अगर हम डार्क में है तो हमें इवन स्पार्क्स भी देख सकते हैं। जो स्पार्क और जो ये साउंड प्रेजेंट होती है या प्रोड्यूस हो रही है वही मेरी इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी डिराइव्ड होती है ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर। एम्बर एक हार्डन्ड सीक्रेशन है सर्टेन ट्रीज का। ओके, now the word electricity derived from the Greek word electron, which means ember. Thales, a Greek philosopher, 600 BC, noticed that when we rub the piece, basically electricity word है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब है मेरा एम्बर। और वहां उन्होंने नोटिस किया कि वुलन क्लोथ द एम्बर अट्रैक्टेड लाइट विद द ऑब्जेक्ट। Thales thought that this property was particular to amber only. Today we know that many kinds of substances can be electrified by the rubbing. Rubbing से बहुत सारे substances जो होते हैं वो rub हो सकते हैं। Thales ने उस समय सोचा कि लाइट पे अट्रैक्ट हो गया तो केवल एम्बर ही है जो अट्रैक्ट हो गया। Now, static electricity. Static means stationary or at rest. When electric charge are produced through the friction of one material upon another, charges produced are called the static electricity. ये हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन ऑफ वन मटेरियल अपॉन द अनदर, और चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको मैं बोलता हूं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक चार्जेज more substance when rubbed against another substance release the static electricity in the form of electric charge caused by the friction between the surface of rubbing substance. जो मोस्टली सब्सटेंस होते हैं जब वो रब करे जाते हैं एक दूसरे के ऊपर तो एक रिलीज होती है स्टैटिक एनर्जी। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म पे। वो कैसे होती है? अगर जो फ्रिक्शन जो होती है, जो दोनों सब्सटेंस को फ्रिक्शन जब दोनों सब्सटेंस के रबिंग करने से मिलती है उससे, इन एवरी केस इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज आर फॉर्म, और हर एक केस में इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज जो होता है वो फॉर्म होता है। ओनली टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और केवल दो ही टाइप का मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। Like charge repel, as a matter of principle, the like charges repel. As such, positive charge repels the positive and negative charge repels the negative. Unlike charges attract each other. जो मेरे like charges होते हैं वो repel करते हैं। जैसे कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस होंगे वो मेरे आपस में रिपेल करेंगे, सेम ही नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करेंगे। बट अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। नाउ एक्टिविटी जोन, टू शो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर whereas unlike charges attract each other. Materials required: 2 glass rods, 2 ebonite rods, a piece of silk, a piece of fur. Procedure: rub a glass rod with a piece of silk and hang it with a thread as shown. Rub another glass rod with a piece of silk and bring it near to the suspended glass rod. What do you observe? The suspended glass rod moves away from the other glass rod. Rub an ebonite rod with a piece of fur and hang it with a thread as shown. Now, repulsion is the sure test of charges on a body. We have learned that a charged body attracts an uncharged body. हमने लर्न किया है कि चार्ज बॉडी जो होती है वो अट्रैक्ट करती है अनचार्ज बॉडी को।
द अपोजिटली चार्ज बॉडी रिपेल ईच अदर, जो अपोजिटली चार्ज बॉडी होती है वो अट्रैक्ट करती हैं ईच अदर, और जो सिमिलरली चार्ज बॉडी होती है वो करती हैं रिपेल ईच अदर। अनचार्ज बॉडी नाइदर रिपेल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर वो अनचार्ज बॉडी है तो वो ना ही रिपेल करेंगी और ना ही अट्रैक्ट करेंगी। Thus, a charged body will attract both the uncharged as well as oppositely charged bodies, but will repel only a similarly charged body. So, अगर चार्ज बॉडी है तो वो अट्रैक्ट करेगी या तो अनचार्ज को या फिर मेरा अपोजिटली चार्ज बॉडी को, बट जो रिपेल होगा वो केवल सिमिलरली चार्ज बॉडी में ही होगा। सो इफ a body is placed closer to another charged body and it shows repulsion, it is confirmed that the body is charged with a similar charge. So इससे ये मेरा फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि अगर बॉडी कोई भी प्लेस करी जाएगी अनदर चार्ज बॉडी के, अगर वो रिपल्शन शो करती है तो इसका मतलब होगा कि दोनों की दोनों का सेम चार्ज है। अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज में बी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी, और अट्रैक्शन जो होता है वो होगा मेरा या तो अपोजिटली चार्ज बॉडी से या फिर अनचार्ज बॉडी से। Therefore, repulsion is the short test of charge on a body. इसलिए मेरा जो रिपल्शन है वो मेरा एक शॉर्ट टेस्ट है चार्ज करने का बॉडी पे। कंजर्वेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। When a body is rubbed against another, electric charge is not created. Instead, the two bodies acquire equal but opposite charge. बेसिकली जब भी बॉडी मेरी रब्ड होती है अगर एक दूसरे पे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्रिएट नहीं होता है। इंस्टेड दो बॉडीज के बीच में इक्वल और अपोजिट चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। नाउ एग्जांपल, when an ebonite rod is rubbed against with a woolen cloth or fur, some of the outer electrons get scraped off the woolen cloth and move to the ebonite rod. As a result, the ebonite rod becomes negatively charged and the woolen cloth or fur becomes the positively charged. Since the number of electrons lost by woolen cloth and gained by the ebonite rod are equal, the charges on the two bodies are equal in magnitude but opposite in sign. जब भी मेरी कोई एक एबोनाइट रॉड को आप रब करोगे वुलन क्लोथ के साथ में, फर के साथ में, तो कुछ मेरे आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्क्रैप हो जाएंगे वुलन क्लोथ से और वो मूव हो जाएंगे एबोनाइट रॉड के ऊपर, जिससे कि एबोनाइट रॉड जो होगी वो मेरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जो वुलन क्लोथ जहां से मेरे बेसिकली इलेक्ट्रॉन गए थे वो मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लॉस्ट हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं, लॉस्ट मेरे वुलन क्लोथ से और गेन हो रहा है मेरा एबोनाइट रॉड से, वो इक्वल हैं, तो चार्जेस जो हैं दोनों में इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में और वो अपोजिट होंगे साइन में। नाउ फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टर्स, substances that allow electrons to pass freely through them are called the conductors. Conductors include such materials as iron, silver, copper. ऐसे सब्सटेंसेस जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को पास करने के लिए फ्रीली थ्रू देम, तो उसको मैं बोलता हूं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि आयरन, सिल्वर, कॉपर। इंसुलेटर्स, substances that do not allow electrons to pass freely through them are called the insulators. Hard rubber, mica, glass and porcelain are the good insulator. Basically ऐसे सब्सटेंस जो अलाउ ना करें इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से पास होने के लिए, तो उनको मैं बोलता हूं इंसुलेटर, और वो होता है मेरा हार्ड रबर, माइका, ग्लास। इंडक्शन, when an electric charge of one kind produces a charge of another kind on a nearby body when there is no direct contact, the phenomena is called induction. Basically इंडक्शन क्या है? जब मेरी इलेक्ट्रिक चार्ज एक काइंड से प्रोड्यूस करती है चार्जेस ऑफ अनदर काइंड नियर बाय बॉडी का, बट उनके बीच में कोई डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं है, तो फिनोमेना को बोलता हूं मैं इंडक्शन। नाउ Benjamin Franklin's experiment. Franklin made a silken kite using a wooden stick as its frame. He fixed a thin metallic wire along the central wooden rib of the frame. Those one end was put outside the kite frame by about 30 centimeter. Basically, फ्रैंकलिन ने एक सिलिकॉन काइट बनाई और उसमें जो वुडन स्टिक्स यूज करे उसको एज अ फ्रेम यूज किया और उसने फिक्स किया थिन मेटेलिक वायर को अलोंग विद सेंट्रल वुडन रिब ऑफ द फ्रेम, और उसका एक एंड जो है वो पुट आउटसाइड किया काइट फ्रेम के बाय अबाउट 30 सेंटीमीटर, और ही टाइड अनदर एंड को उसने मेटल वायर के साथ में स्ट्रिंग ऑफ द काइट के साथ में जोड़ा। Now he tied a metal key with the end of the string he hold with the help of silk ribbon,
और उसने टाइट किया मेटल की को अनदर एंड स्ट्रिंग का, जिससे उसने हेल्प के सिल्क रिबन के हेल्प से उसने होल्ड ऑन किया उसको। On a stormy day, he set out to fly his kite. When the kite went up in the sky, he observed that the loose string got stretched due to the electric charge from the cloud. और स्टॉर्मी डे के दिन उसने अपनी काइट को फ्लाई किया, और जब काइट ऊपर गई स्काई में, उसने ऑब्जर्व किया कि जो लूज स्ट्रिंग थी वो स्ट्रेच हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज क्लाउड से मिल गए उसको। At this moment, he slightly touched the key and received a shock. Fortunately, the charge was mild, otherwise the shock could have fatal. और उसने उस मोमेंट पे टच किया की को, तो उसने क्या फील किया कि एक शॉक फील किया टच करने के बाद में। फॉर्चुनेटली वो चार्ज जो था वो माइल्ड था, इवन अगर शॉक ज्यादा होता तो वो कुड बी फैटल भी हो सकता था। Through this experiment, Franklin proved that lightning clouds carry the electric charge. और इस एक्सपेरिमेंट ने फ्रैंकलिन ने प्रूव किया कि जो लाइटनिंग क्लाउड होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी कैरी करते हैं। On the basis of this experiment, he provided the principle of lightning conductors for the safety against the devastating effect of lightning. और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने प्रिंसिपल बनाया लाइटनिंग कंडक्टर्स का, जो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द devastating effect of the lightning. Now, lightning and thunder. Benjamin Franklin from experiment concluded that during the rainy season, clouds are electrically charged. He realized that as the kite reached the cloud, the charge flowed down the wet thread to the metal key. On touching the key, the electric charge passed through his body to the earth, giving him an electric shock. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया कि रेनी सीजन में क्लाउड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। उसने रियलाइज किया जब काइट रीच कर गई क्लाउड्स को, और जो चार्ज है वो फ्लो डाउन कर गया वेट थ्रेड के थ्रू मेटल की पे, और जैसे ही उसने टच किया मेटल की को, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है पास कर गया अपनी उसकी बॉडी से अर्थ पे, तो जिससे कि एक इलेक्ट्रिक शॉक उसको मिला। Cloud gets electrically charged due to rubbing of the clouds with the air and due to the presence of dust, carbon and other charged particle in the air. Clouds जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि रबिंग ऑफ द क्लाउड्स विद द एयर और प्रेजेंस होती है उसके अंदर डस्ट, कार्बन और अदर चार्ज पार्टिकल एयर के अंदर। When the two clouds carrying opposite charge attract each other, a large quantity of electric charge flow rapidly from one cloud to the other through the air. अगर मेरे दो क्लाउड्स जो अगर कैरी कर रहे हैं अपोजिट चार्ज, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। ओके, जो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे काफी रैपिडली जाएगा एयर के थ्रू। Thus an intense spark of electricity seen in the sky. इससे हमको एक इंटेंस स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिखती है स्काई के अंदर। Such rapid flow of charge through the air between two oppositely charged clouds इट्स कॉल्ड लाइटनिंग। और इसी प्रोसेस को मैं लाइटनिंग बोलता हूं, जब मेरा रैपिड फ्लो ऑफ चार्ज होता है एयर बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज क्लाउड के बीच में। दिस प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, और ये मेरा हीट और लाइट बहुत सारा प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग, द एयर गेट्स हीटेड अप एंड एक्सपैंड सडनली। दिस रिजल्ट इन अ डिस्टर्बेंस थ्रू द एयर प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड कॉल्ड द थंडर। इस हीट प्रोड्यूस से लाइटनिंग के टाइम पे एयर जो होती है वो हीटेड अप हो जाती है और एक्सपेंड कर जाती है सडनली, तो उससे क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस प्रेजेंट होता है एयर के अंदर जो प्रोड्यूस करती है एक लाउड साउंड, उसको मैं बोलता हूं थंडर। हाउ लाइटनिंग स्ट्राइक्स टॉल बिल्डिंग। द बॉटम ऑफ क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज व्हेन दीज क्लाउड पास ओवर अ टॉल बिल्डिंग। द डिस्टेंस बिटवीन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ द क्लाउड इज स्मॉल। द नेगेटिव चार्ज ऑफ द क्लाउड इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन द building roofs. The buildings are induced with a negatively charged at their bases due to the electric induction. जो बॉटम होता है क्लाउड का वो मेरा नेगेटिवली चार्ज होता है, और जैसे ही ये क्लाउड पास करेंगे टॉल बिल्डिंग के ऊपर से, तो डिस्टेंस होगा रूफ की बिल्डिंग के ऊपर और बॉटम ऑफ द क्लाउड के बीच में वो काफी स्मॉल रह जाएगा। नाउ जो नेगेटिव चार्ज है क्लाउड का वो इंड्यूस कर देंगे पॉजिटिव चार्ज ऑन द बिल्डिंग रूफ, और बिल्डिंग्स जो होंगी वो इंड्यूस हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज एट द बेसिस। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक इंडक्शन की वजह से। द मॉइस्ट एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ कंडक्टर एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लाउड मूव इन द एयर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जो मॉइस्ट एयर है एटमॉस्फेयर की वो एज अ कंडक्टर एक्ट करेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेगा, क्लाउड से मूव कर जाएंगे एयर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ऑन कॉन्टैक्टिंग
with the building, these electrons form a path for other charges of the cloud to rush towards the building. और contacting के बाद में building के साथ में ये electrons जो है एक path बना देंगे other charge के लिए. Okay, the building comes under the heavy rush of these electrons and catches fire. और building इसके बाद में काफी ज्यादा heavy rush feel करेगी और fire भी catch कर सकती है. Lightning conductor. Shortly after Franklin proved that lightning was a form of electricity, he suggested that if metal rods were installed on top of building and connected by thick wires to the ground, any lightning near the structure would pass through the metal into the ground without harming the building. Lightning conductor. यहाँ पे फ्रैंकलिन ने ये ऐसा बताया, प्रूव किया कि लाइटनिंग जो है एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसने सजेस्ट किया कि अगर हम मेटल रॉड्स को इंस्टॉल कर देंगे बिल्डिंग के टॉप पे और उनको कनेक्ट कर देंगे थिक वायर्स के साथ में, ग्राउंड के थिक वायर्स में, ओके, तो कोई भी लाइटनिंग अगर नियर द स्ट्रक्चर होगी तो वो पास डाउन हो जाएगी मेटल से ग्राउंड पे विदाउट हार्मिंग द बिल्डिंग. जनरली अ लाइटनिंग conductor is a thick copper strip fixed to the outside wall of the building. The upper end of the strip has several sharp spikes and lower end is connected to a copper plate buried in the earth. जो जनरली एक लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है वो एक थिक कॉपर स्ट्रिप होता है आउटसाइड वॉल ऑफ द बिल्डिंग से फिक्स होके. अपर एंड जो स्ट्रिप की होती है वो काफी सेवरल स्पाइक्स होती हैं और लोअर एंड जो होता है वो कॉपर प्लेट से कनेक्ट होता है जो अर्थ के अंदर बरीड होता है. The electrons gathering around the spikes during lightning are so numerous that they repel any negatively charged air particles which move upward towards the cloud. जो इलेक्ट्रॉन्स जो गैदर हो रहे होंगे स्पाइक्स के पास में लाइटनिंग से वो इतने न्यूमेरस होते हैं कि वो रिपेल करेंगे कोई भी नेगेटिवली चार्ज एयर पार्टिकल को और वो मूव अपवर्ड कर जाएंगे टुवर्ड्स द क्लाउड. दिस लेसन्स द चांसेस ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन द बिल्डिंग. और ये चांसेस ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक को काफी रिड्यूस कर देता है. Even if the lightning strikes the conductor, the electric discharge from the cloud flows down to the earth through the lightning conductor, causing no damage to the building. अगर वो लाइटनिंग जो होती है कंडक्टर के ऊपर भी स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होगा क्लाउड से वो सीधा सीधा अर्थ में चला जाएगा लाइटनिंग कंडक्टर के हेल्प से, जिससे कि कोई भी डैमेज नहीं होगा. Now precautions: never take a shelter under the trees during a thunderstorm or lightning. The lightning cloud strikes the tree and could injure or kill you as it's run down. हमें कभी भी शेल्टर ट्री के अंदर नहीं लेना चाहिए जब भी कभी थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग हो रही होती है, क्योंकि लाइटनिंग से ट्री को स्ट्राइक कर सकता है और इंजर कर सकता है और इवन हमको किल भी कर सकता है. It is best to kneel down in the open air with your heads as low as possible and your hands resting on your knees with fingers pointing towards the ground. If the lightning strikes you, it should hit your shoulders, run down your arms and out of your fingers into the earth. This position protects your hand and vital organs such as your heart. सबसे बढ़िया है कि हमें नील डाउन कर देना चाहिए ओपन एयर के अंदर, इसमें कि हमें अपना हेड जो है अपना लो रखना चाहिए, ओके, लो एज पॉसिबल, और अपने हैंड्स जो हैं रेस्टिंग होने चाहिए हमारे नीज के ऊपर और फिंगर्स जो होते हैं पॉइंट होने चाहिए टुवर्ड्स हमारे ग्राउंड. अगर लाइटनिंग हम पे स्ट्राइक भी करेगी तो हमारे शोल्डर्स पे करेगी और रन डाउन कर जाएगी हमारे आर्म से होते हुए फिंगर से होते हुए अर्थ के ऊपर. और ये पोजीशन जो है हमारे प्रोटेक्ट करती है हेड को और वाइटल ऑर्गन सच एज हार्ट. नाउ लाइटनिंग द यूजफुल साइड. Lightning when strike serious damage result, but there are few advantage of lightning also. Lightning जैसे कि हमने देखा है अब तक काफी हमें डिसएडवांटेज लगी और काफी सीरियस लगी और डैमेज भी इससे काफी होते हैं, बट कुछ एडवांटेज भी हैं इसके, जैसे कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर फॉर्म ड्यू टू द लाइटनिंग. जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लाइटनिंग से ही होते हैं. द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर ड्यूरिंग द लाइटनिंग टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड गैस. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो रिएक्ट करती है टुगेदर लाइटनिंग के टाइम पे, जिससे कि एक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है. दिस गैस ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन अगेन फॉर्म्स नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस. और ये गैस रिएक्ट करने के बाद में ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनाती है, जो which dissolves in the water droplets in the cloud and comes down with the
precipitation as nitric acid in a weak form. तो डिजोल्व कर जाएगी वाटर ड्रॉपलेट के साथ में, क्लाउड के साथ में, और कम डाउन कर जाएगी precipitation as nitric acid एक weak form के अंडर. This nitric acid reacts with the carbonates already present in the soil and forms the carbonates of calcium and magnesium which are very niche nutrients of the plant. ये ही जो नाइट्रिक एसिड है वो रिएक्ट कर जाएगा कार्बोनेट्स के साथ में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, ओके, और फॉर्म कर जाएगा कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो काफी रिच न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के. Oxygen gets converted into the ozone. When lightning passes the air, the oxygen gets converted into the ozone. Ozone protects from the hazards of UV rays coming from the sun. It filters the sun rays before they fall on earth. जो लाइटनिंग होती है एयर से जैसी पास होती है तो ऑक्सीजन जो होती है वो ओजोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ओजोन मेरी प्रोटेक्ट करता है हैजार्ड्स ऑफ द यूवी रेज जो सन से आ रही होती हैं, वो फिल्टर कर देगा सन रेज को, इससे कि पहले वो अर्थ पे पड़े उनको फिल्टर कर देगा. The evolutionary phase of life on Earth are associated with the lightning, which is believed to have helped the process of evolution of Earth. और ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के लिए मेरा कहीं ना कहीं लाइटनिंग भी एक जिम्मेदार है. ओके, लाइटनिंग हैज प्रोवाइडेड वाटर टू सर्टेन डेजर्ट एरियाज व्हिच गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्रीन एरिया. और लाइटनिंग ने ऐसी जगह पे भी वाटर दिया है जो डेजर्ट होते हैं जो जिससे वो कन्वर्ट हो गए हैं ग्रीन एरियाज में. Now let's recall what we have studied in the chapter. The word electricity is derived from the Greek word electron meaning ember. Static electricity means the charge produced by friction of one material over another. Static electricity released in the form of positive and negative charges. Like charge repel, unlike charge attract each other. Substances that allow electrons to pass through the metal are called the conductors. Substances that do not allow electrons to pass through them are called insulators. Thunder is best known phenomena of induction. Clouds have negative charges towards the bottom and positive charge on the upward side. Lightning usually strikes tall structures on earth. Benjamin Franklin proved that lightning is associated with the electricity. Now glossary: lightning, rapid flow of charges through the air between two oppositely charged clouds. Thunder, the roaring sounds caused by the collision of cloud. Static, stationary or at rest, not moving. Now student, it's the time for the practice time. So the word electricity is derived from the word electricity is derived from the word Italian, Egyptian, Greek, Indian. Answer is Greek. The Greek philosopher who experienced electricity first was Socrates, Aristotle, Apollo or Thales. Watch Thales. The following occurs when there is more heat and humidity: lightning, thunder, snowfall, hailstorm. Lightning. Discharge of sparks by the cloud is called storm, thunder, liquid pressure, all of these. Thunder. The word electricity is derived from the Greek word electron. Static means dash or at rest, stationary. Unlike a face each other, unlike a charges, a charged body attracts uncharged body. When strikes serious and damage the result, lightning. Okay. Now, a charged object always attracts another charged object. Was a lightning conductor can be made from a plastic strip. Again, of course, electron is a Greek word meaning clouds. False. Unlike charges repel and like charges attract. False. Static charges are those which do not move. True. Hard rubber, mica, glass and proclaim are good insulators. It's a true. Now, match the following. Static electricity, electric charge produced through the friction. Lightning conductor, one of the best form of induction. Ember is a Greek word electron. Thunderstorm, suggested by the
Benjamin Franklin. Oppositely charged body attract each other. Now, very short answer type questions. What are static charges? Most substances when rubbed against another substance release the static electricity in the form of the electric charges caused by the friction between the surface of the rubbing substance. In every case, equal amount of opposite charges are formed. So these are the static charges. Next is define insulators. Basically, insulators are those materials through which electrons cannot pass through. Okay, the materials which do not allow the electrons to pass are the insulators. And what are the conductors? Conductors are the materials through which electrons can pass easily and in a faster manner. So these are the conductors. Now, what is induction? When an electric charge of one kind produces a charge of another kind on a nearby body when there is no direct contact, the phenomena is called induction. जब मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज एक काइंड का ठीक है एक प्रोड्यूस हो जाता है और अनदर काइंड ऑफ नियर बॉडी पे पास हो जाता है बिना किसी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट के ओके तो उस फेनोमेना को बोलते हैं इंडक्शन. Name the two charges in cloud, positive and negative. Positive and negative. These are the two charges in cloud. What is a lightning conductor? जनरली लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है वो थिक कॉपर स्ट्रिप होती है जो फिक्स होती है आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग, तो उसको मैं बोलता हूँ एक लाइटनिंग कंडक्टर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? सो बेसिकली स्टैटिक का मतलब होता है जो कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या स्टेशनरी है. ओके सो static means stationary or at rest. When electric charge are produced through the friction of one material upon another, the charges produced are called the static electricity. जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेज प्रोड्यूस होते हैं फ्रिक्शन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे तो उसको मैं बोलता हूँ जो चार्ज प्रोड्यूस होता है बेसिकली वो होता है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. Write the precautions to protect yourself from the lightning to it if you are out of the home. Firstly, don't remain in open place. Don't stand near to or नियर टू अ ट्री. ट्री के नीचे या फिर ट्री के पास हमको नहीं बैठना है. डोंट यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आपको यूज नहीं करनी है ओके लाइटनिंग के टाइम पे. हाउ इज द लाइटनिंग यूजफुल टू अस? इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है. सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो फॉर्म होते हैं वो लाइटनिंग से ही होते हैं और ऑक्सीजन से बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है ओजोन. तो ये हमारे लिए दोनों ही चीजें काफी यूजफुल हैं.
What is meant by conservation of charge during the rubbing of two bodies? इसका आंसर क्लास में हमने बताया था, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको रेफर करना है। ये है कंजर्वेशन ऑफ इक्वल अपोजिट चार्ज, यहाँ से आपको पैराग्राफ यहाँ तक आपको रेफर करना है इसके आंसर के लिए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज लाइटनिंग एंड हाउ इट इज कॉज्ड। का भी आंसर क्लास में बताया गया था और ये कहाँ रेफर करना है वो बता देते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे है कि लाइटनिंग क्या होती है मेरी, रैपिड फ्लो ऑफ चार्ज होता है थ्रू द एयर बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज क्लाउड, वो उसको मैं लाइटनिंग बोलता हूँ। हाउ हाउ इट्स कॉज, इसका आंसर पूरा यहाँ तक दे रखा है। ओके, यू कैन रेफर फ्रॉम दिस। हाउ डज लाइटनिंग स्ट्राइक द बिल्डिंग, लाइटनिंग कैसे स्ट्राइक करती है बिल्डिंग को। दिस आंसर वी कैन टेक फ्रॉम हियर, कैसे लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी यहाँ तक। ओके, ये सभी मैंने क्लास में आपको बताए थे, सो यू कैन जस्ट रेफर फ्रॉम आंसर, यू कैन रेफर फ्रॉम हियर। डिस्क्राइब द बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। का आंसर यहाँ पे है बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट से यहाँ तक। ओके, और यू कैन टेक फ्रॉम हियर। व्हाट प्रिकॉशंस शुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इट्स आंसर इज फ्रॉम हियर, प्रिकॉशंस टू दिस वन। ओके क्लास, explain how is lightning beneficial. Lightning the useful side, these are the ways by which lightning is beneficial. So thank you class.